کوئی اڈیالہ جیل میں اچھا کھانا کھا رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں آسان کاروبار پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا حالات نے کیسا پلٹا کھایا، وہ شخص آج میرے پاس اڈیالہ جیل میں بند ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے، کولر ملا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے. مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ ملک اب گھیراؤ، جلاؤ، انتشار، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا. مریم نواز نے تقریب میں چیک تقسیم کیے اور قرض حاصل کرنے والوں کے لیے انڈسٹریل زون میں اراضی دینے کا اعلان کیا. لڑائی کرنے کی عادت ہے. پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے، پاکستان کی اکانومی سے لڑ رہے تھے، اس کو خراب کر رہے تھے، پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر رہے تھے. اور اب جب لوگوں نے کان نہیں دھرے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے. تماشا بن گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا رمضان المبارک میں فری پلاٹ اسکیم شروع کر رہے ہیں. تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو پنجاب کے اندر رمضان المبارک میں 10,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ میری طرف سے ان کے ڈور سٹیپ پہ لفافہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا. آسان کاروبار فائنانس کے تحت 10 لاکھ سے 3 کروڑ تک کا قرض حاصل کیا جا سکتا ہے. قرض حاصل کرنے والوں کو سود ادا نہیں کرنا پڑے گا. ندیم چوہدری، ایکسپریس نیوز، لاہور. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی تک ایک بار پھر رسائی روک دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے فکس ہو، اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہو وہ جج صاحبان سارے کے سارے بیٹھے اور وہ ان پہ فیصلہ کریں. ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. یہی آئینی طریقہ ہے، یہی جمہوریت ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند. آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. یہ قوانین جس طرح کے 26ویں ترمیم ہے، جس طرح کے اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا جو بل تھا، پیکا لاز ہو گئے، اور اس طرح کے سارے جو ڈریکونین لاز ہیں، یہ صرف وہی پارلیمان بنا سکتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں. پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر اعظم سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا کہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں. عالمی بینک کے تعاون سے ملکی تعمیر و ترقی کے متعدد بڑے منصوبے تعمیر ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری گزشتہ 7 دہائیوں پر محیط ہے. عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان میں ملکی تعمیر و ترقی کے حوالے سے متعدد بڑے منصوبے تعمیر ہوئے جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری سے استفادہ کیا. عالمی بینک نے 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان میں متاثرہ لوگوں کی بھرپور مدد کی. شہباز شریف نے کہا عالمی بینک کے حالیہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. $20 ارب سے پاکستان میں صحت، تعلیم، ترقی، نوجوانان اور دیگر سماجی شعبوں میں مختلف منصوبوں سے ترقی کا نیا باب کھلے گا. نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا. عالمی بینک کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کے شکر گزار ہیں. ملک کی معیشت صحیح سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی برآمدات، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے. شرح سود کم ہونے سے پیداواری شعبے میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے. کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں. SIFC کی بدولت ملک میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول فراہم کیا گیا ہے. وفد نے حکومت کے توانائی، صنعت و برآمدات، نجکاری، محصولات اور دیگر شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات کی تعریف کی. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں. پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا. شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا. نواز شریف اور مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات. مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا ہے.
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सदर नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बूंदाबांदी हुई है। MA जिन्ना रोड, II चंद्रिका रोड पर भी हल्की बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बुध और जमेरात से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, आसिफ शाह, सरदार अली और चीफ सेक्रेटरी की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध का वफ्द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा कि सैलाब के दौरान हुकूमत पाकिस्तान, सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। मुतासिरीन की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.6 अरब की मंजूरी दी। हम वर्ल्ड बैंक के साथ मज़ीद मजबूत शराकत दारी कायम करना चाहते हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। दिनेश कुमार बोले कि मुखालफत करने वाले PTI अरकान ने दस्तखत किए हुए हैं। सेनेट इजलास में एक बार फिर ऊ की गूंज। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट का जाते हुए अपोजिशन की तरफ ऊ करके इशारा। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने कहा, आप ऊ करें, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। हम रूल के मुताबिक चल रहे, कानून के मुताबिक चलेंगे, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। वाह वाह वाह, इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रूल के मुताबिक चले। नहीं नहीं, ये वाह वाह ये नहीं होगा। ये आप जो कर, ये नहीं होगा, नहीं करेगा। नहीं, रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर, इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं है। अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी यही कर रहे हो। कौमी असम्बली में 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। इंसानी स्मगलिंग, मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम के तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली में 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। 1 साल से देख रहा हूँ हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही। सरपंच मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अपोजिशन अगर सही तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। मुल्की सालमियत से मुतालिक पॉलिसी ऐवान के बजाय बंद कमरों में बन रही। KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। महकमे और इदारे मलिया मेट किए जा रहे, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सेवन हादसे पर सियासत करना अफसोसनाक है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर इत्तलात पंजाब बयानात देने से पहले जवाब का सोच लिया करें। पंजाब हुकूमत की सच्चाई जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहूँगा। सेवन में एक हादसा हुआ और अफसोसनाक हादसे से काफ़ी कीमती जानें गईं। बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं और ख़ास तौर पर जब चीफ मिनिस्टर पर या बाकियों पर तनकीद करती हैं, तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा। और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे, हम कोई मफरूज़ों पे बातें नहीं करेंगे, ना ही हम कोई झूठे रिकॉर्ड लोगों को बताएंगे। हम सिर्फ आपको सच बताएं। पीपुल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। पीपुल्स पार्टी की खिदमत को अवाम ने सराहा है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन कहा, सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हमारी मजबूरी है, खुलकर जवाब भी नहीं दे सकते। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। आप अपनी 16 साल और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मवासना कर लें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। बैरिस्टर सैफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिशों में हैं।
हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा प्राइम मिनिस्टर की सीट शहीदों की सीट है, इस पर शहीदों के वारिस को बैठना है। पीपल्स पार्टी को पंजाब के गली मोहल्ले में मजबूत करना है। हमारा बस 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने उस शहीदों के वारिस को बिलावल भुट्टो को इंशाअल्लाह इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और वो सीट, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट जो शहीदों की सीट है, उस सीट पे इनका इंशाअल्लाह शहीदों के वारिस को बिठाना है। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है। अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 अलग-अलग ग्रुप्स में लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नई किट के साथ वीडियो भी जारी कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए भारतीय सहाफ़ियों को पाकिस्तान का वीज़ा जारी। मीडिया के मुताबिक भारत के 7 सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए रुजू किया था। वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने वाले तमाम भारतीय सहाफ़ियों को वीज़ा जारी कर दिया गया है, किसी का मुस्तरद नहीं किया गया। 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शानदार इफ्तिताही तकरीब लियाकत जिम्नेजियम हॉल इस्लामाबाद में हुई। 20 से ज़ायद ममालिक के 400 एथलीट्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। कई ममालिक के झंडों की परेड और कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। एशियन ताइक्वांडो यूनियन के सदर प्रोफेसर क्यू सियोक ली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का ऑफिशियल नगमा, चैंपियनशिप की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री और इवेंट के टाइटल स्पॉन्सर कॉम्बैक्स का खुसूसी प्रोमो भी पेश किया गया। CEO उमर सईद ने 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेज़बानी को मुल्क के लिए एजाज़ करार दिया। बात करेंगे केपी हुकूमत का कुरम को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम की सूरत हाल पर अहम फैसले। तर्जुमान केपी हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला की सामान ले जाने वाले काफिलों पर फायरिंग और लूट मार की शदीद मुसम्मत। कुरम के इलाके औसत मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक किया जाएगा। मुतालिका इलाकों में मौजूद शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला के सामान ले जाने वाले काफिलों पर फायरिंग और लूट मार की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। केपी हुकूमत का कोरम को शरपसंदों से पाक करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास में कोरम की सूरत हाल पर अहम फैसले किए गए। और अब बात करेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात हुई।